Thank you all for being here. Sorry for making you wait for an hour. I think the best compliment I've got is from the audience in Busan, who thought that the film was made for a girl in Korea, and they thought that the film can travel to any part of the world, and for any girl in the world this film works well. बिजनेस तो यार मुझे नहीं पता, पर ऐसा बोला जा रहा है कि 75-80 करोड़ हो गया है, पर आई एम नॉट द राइट गाय फॉर दैट. I think the film is totally driven by the audience. From the Friday we opened to where we are now, nothing can make that happen other than the audience. So I think the audience has taken over the film. They love it, and they are ensuring that it goes to the next level. And today on Facebook I was seeing someone having put up saying, let us work hard to make Queen a bigger film, because it's our responsibility as an audience to make it a big film. So nothing bigger and better than that. No marketing plan is better than that. I think it's more important to be special than number one, and I think Kangana is special today, and she has her own distinct position, and I think that's much more important than to be number one or number two, because it's not a cricket game, it's a movie business. So if you are recognized as being someone special and has a much longer run being here, that's the best thing. I'm glad if it's the first big hit of 2014, but I hope that there are many big hits that come for the rest of the year, and a lot of money comes into the movie industry, and we make many more movies for the audience. Sorry? I don't know. I mean, we didn't expect this, so we're now going with the flow, and whatever comes our way, we're happy about it. अभी हंसते खेलते हुए ये हो गया, अभी हंसते खेलते हुए अगला बन जाए, but that's the only award we're looking for. I'm so happy that they're seeing it so many times, but I wish there was a scheme where they could buy 5 tickets, and 5 tickets price is lesser than ticket of 1 ticket each time. But I'm so glad people are going again and again. It's the best. I mean, there's nothing better than an audience going to watch your film twice. And if it happens more than twice, it's so overwhelming. And I just hope that people each time they go to watch it, they enjoy it even more. And they don't find the faults that might exist in the film. आप जो अगली फिल्म बना रहे हैं शाहिद कपूर के साथ, ऐसा कहा जाता है इंडस्ट्री में शाहिद कपूर के बारे में कि वो तुनक मिजाजी है, वो तुनक मिजाजी है, गुस्से वाले थोड़े या थोड़ा उनका, इस बारे में आपने कुछ सुना या कुछ प्लान कर रखा है इस बारे? आई थिंक शाहिद तो इतने बढ़िया मज़ेदार इजी गोइंग इंसान है. आई थिंक उनसे ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर तो मेरा होगा 100%. प्लान कर रखा है कैसे? नहीं, हंसते खेलते हुए पिक्चर बनाएंगे और ऐश करेंगे. नहीं, I wish Alia does the film, but right now it's not finalized. अभी तो स्क्रिप्ट लिखी नहीं गई है, तो जब तक मैं स्क्रिप्ट लिख नहीं लूँ, I can't decide as to who should be the person. हाँ, अरे ज़रूर, मैं कंगना के पास होपफुली कुछ महीनों में वापस एक स्क्रिप्ट लेके पहुँचूँगा, उनके घर की घंटी बजाऊँगा, और होपफुली वो मेरे को एक और मौका देंगी उनको स्क्रिप्ट सुनाने का. आपको कितना क्रेडिट मिला 50? हाँ, सारा मेरा है यार. और कौन ले रहा है 50 करोड़? I think Kangana's biggest achievement is that she is a surprise, and not just for the audience, she's a surprise for the director also. So I just hope she always keeps doing things which no one can imagine as to what will happen in that character. And when you go walk in and you realize, oh wow, I could not even imagine that someone can do this on screen. But because why only Kangna, not someone else apart from Kangna? For what? Whatever things to experiment with. No, every film has a different requirement. For this film, I was very sure that Kangana is the only person I want to work with. Apart from next film, should be Kangna only or someone Pardon me? else to experiment with woman-only oriented movies?
to me this was never a woman oriented movie. This is a story of a character, and I thought Kangana was the best person to play that character. And depends, I mean, what film happens next, what we do in that, so I can't predetermine कि उस फिल्म में क्या होगा. गाने की वजह से फिल्म की जो जान थी वो ज़्यादा हो गई और लोगों में अचानक एक ज़्यादा बस गए मानो, और दूसरी की वजह से आपको फिल्म भी एक हफ्ते बाद. एक्चुअली अगर वो गाना इज माई फेवरेट गाना, बट आई थिंक फिल्म की ओपनिंग फिर भी जो थी वो थी. बाकी सब जो हुआ दैट हैपेंड पोस्ट दैट फ्राइडे शाम तक तो हमारे हार्ट बीट ऐसे चल रहे थे, बट बाय सैटरडे मॉर्निंग इट चेंज. एंड आई थिंक इट हैपेंड लार्जली ओनली बिकॉज ऑफ the story, the screenplay, the performances and the connect that the movie had. यार मैं तो बॉम्बे एक्चुअली पिक्चर बनाने के लिए तो आया नहीं था. अब 2 बन गई, दोनों चल गई. अब अगली भी हंसते खेलते मजे करते हुए बना लेंगे, बट देयर इज नो प्रेशर बिकॉज आपके पार्टनर जो है वो उनकी अब एक फिल्म आ रही है भूतनाथ रिटर्न. हाँ, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? अरे नितेश is an outstanding writer, outstanding director. Bhootnath is looking like such a fun film, and it will be so amazing if both Nitesh's film and my film both do well in matter of just 1 month after having worked for so long. But I would really want everyone to go and watch Bhootnath. I have heard the story and it's outstanding. चिल्लर पार्टी की कहानियाँ हैं हमारे दिमाग में, पर अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं उसका क्या करें. बट एक छोटी सी आशा है कि शायद हम कभी चिल्लर पार्टी 2 बना सकें. हाँ, मुझे 2 गाने यार मैं तो ये बोल सकता हूँ कि मेरा हाल तो गुप्ता अंकल जी वाला हो गया कि ना उन्होंने शराब पी ना सिगरेट पी, फिर भी उनको कैंसर हो गया. अब मैं जाके थोड़ी शराब पी आता हूँ. त्रिवेदी, अभी त्रिवेदी की बात है, ये कोई बुलाने वाले आ रहे हैं. हाँ, नहीं यही सब है, सारा कुछ तो इन्होंने किया हुआ. एक तो आशा भोसले जी का गाना तो ऑलरेडी चार्ट बस्टर था ही. इट वाजंट डिफिकल्ट फॉर मी टू कि इसको खाली इसको रीमिक्स करना, एक उसको अच्छे से प्रेजेंट करना बहुत चैलेंज था, वो बड़ा चैलेंज था. उसमें काफ़ी टाइम गया, बट इवेंचुअली जो भी हुआ उससे सारे हम खुश. सॉरी. हाँ सॉरी, लब जंजुआ. हाँ, उनका क्या, वो जो लंदन धुमक दिया तो गाना था, उसमें चाहिए था एक थोड़ी सी पंजाब की मिट्टी की आवाज़ चाहिए थी. लब जंजुआ इज गॉट दैट टेक्सचर जो एक्चुअली उस प्रांत की मिट्टी की आवाज़ है. अभी तो एक सवाल है आपसे, क्योंकि ये जो गाना है हमने अक्सर देखा है लता मंगेशकर या आशा भोसले वो लिरिक्स गाने पसंद नहीं करते ज़्यादा, तो कितना उनको कन्वे करना ये रहा कि हम आपका गाना दे रहे हैं और उनको रिमिक्स करके एक तरह से. एक्चुअली ये जवाब विकास देंगे. आई थिंक अमित त्रिवेदी जो भी करते हैं सबको अच्छा लगता है, तो हमने ऐसा डिसाइड कर लिया कि अमित त्रिवेदी मिक्स करेंगे, सबको पसंद आ जाएगा, सब खुश होकर घर चलेगा. बस वही हुआ. किंग सिर्फ एक ही किंग है बॉस. अगर त्रिवेदी किंग नहीं होता तो कुछ नहीं होने वाला था. मैं तो पंखा चला रहा था ताकि अच्छा म्यूजिक निकले. गाना सुनाओ, क्या गाना सुनाओ बोलो. आशा ताई बोला मुझे. नहीं जो खुद गाए 2 गाने. किनारे गाएगा, खुद ही तो है हम किनारे बस. एक्चुअली मुझे थोड़ा सा मैं उस जोन में नहीं हूँ. हाँ, ताके जाके है खुशी की शरारत ऐसी देखो, ताके जाके देखो तो. थैंक यू. हाँ, सारे पैसे मैं खा जाता हूँ.
थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो आपको बुलाया आज। अभी तो फिल्म चल रही है, थिएटर्स में लगी हुई है, और जैसे आपने सुना होगा कि तीसरा हफ्ता भी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दिस इज़ वन फिल्म विच हैज़ कम्प्लीटली रीरिटन द मैथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नंबर्स। तो जो भी हम लोग के तजुर्बे थे फिल्मों के साथ, और हम लोग के तजुर्बे में कुछ सक्सेसफुल फिल्म्स रही हैं, उन सब से बिल्कुल अलग ही गणित बना है इसका। तो अगर आप देखें, सेकेंड वीक greater than first week, Monday greater than Friday, so I can go on. So none of the rules apply. So to answer the question how much the film will do is also difficult right now. Theatrical close to 55 crore for sure. And then of course I think it's a great satellite film as well, and hopefully that will add as well. Plus overseas is also done very well. So I think overall it looks good. इंडिया में बहुत कम बचेगा, इस तरह का रिस्पॉन्स भी बहुत कम मिलता है, तो ये एक तरह का बेट नहीं था आपको लगता है, और आपने जो बेट किया वो बहुत सक्सेसफुल। तो ये बेट लेना ही हमारा काम है। अगर आप हमारी फिल्में देखें, मिल्खा, तो जब मिल्खा शुरू हुई तो मिल्खा में भी वो एक बेट था। वो फिल्म उतनी बड़ी नहीं थी जब फिल्म शुरू हुई। अगर आप दूसरी फिल्में देखें, मद्रास कैफ़े, जिसमें कोई गाना नहीं था, नरगिस और जॉन जंगल में थे लेकिन वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो इस तरह की फिल्में हर तरह से रिस्क होती हैं। क्वीन बहुत बड़ी रिस्क थी ऑफ कोर्स, पर क्वीन की स्क्रिप्ट में हमें बहुत भरोसा था। तो इस स्क्रिप्ट पे शुरू से हमें बहुत भरोसा था, और हमें मालूम था कि ये फिल्म कुछ खास ज़रूर करेगी, और सबके बिल्कुल दिलों में तो समा गई है। तो कुछ खास से भी कुछ खास कर बैठी है फिल्म। इस बार आप अगला रिस्क किस पे लेना? ये इस तरह से सवाल हुआ जैसे आप पूछे धोनी से कि आप कौन सी नेक्स्ट बॉल पे क्रीज से बाहर निकलेंगे। काफ़ी हैं। अगर आप देखें, हर फिल्म एक रिस्क है। अगर आप माउंटिंग देखें, जैसे मेरी कॉम कर रहे हैं हम, एक बड़ी फिल्म है। आप कह सकते हैं इतनी बड़ी शायद न भी हो, क्या मिल्खा जितनी बड़ी होगी। फिर हम एक फ़िल्म कर रहे हैं जिसका नाम है मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ, ये एक हिंदी फिल्म है। तो एक और है जो जिस तरह से ओ माय गॉड का सक्सेस हुआ, उसके बाद तो हम लोग एक परेश जी के साथ कर रहे हैं धर्म संकट में, वो भी एक अलग तरह की फिल्म है। तो हम लोगों का फोकस ही इस पे रहता है कि हम लोग कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स करें, स्क्रिप्ट वाली फिल्में करें, और जिन स्क्रिप्ट्स पे हमें भरोसा है, जिन स्क्रिप्ट्स में हमें वज़न, स्टार, पावर नज़र आती है, उन स्क्रिप्ट्स पे हम लोग काम करते हैं, उसको बैक करते हैं, और अभी तक तजुर्बा थैंकफुली बहुत अच्छा रहा है। सॉरी, फिल्म में लकी होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, थैंक यू। पार्टी थी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आई थिंक हम लोग वही रिस्पॉन्स सेलिब्रेट करने के लिए आज ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है, और मुझे नहीं था पता कि इसके लिए भी कोई कॉल टाइम था, बिकॉज आई वाज़न्ट गिवन वन। आई रियली अपोलोजाइज इफ यू गाइस हैड टू वेट। लेकिन आई थिंक फिल्म ने सर कितने का बिजनेस किया है?
85 का बिजनेस किया है और हमारे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जिस नोट पे हम लोगों ने शुरू किया था उस नोट पे किसी ने सोचा नहीं था कि हम लोग इतना अचीव कर पाएंगे। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक ये रेलिवेंट नहीं है कि 100 बनाए या कितना बनाए, 110 बनाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आई थिंक क्या फ़र्क पड़ता है कि हम लोगों को इस फिल्म से जो एक हमारी इंडस्ट्री की बहुत अहम फिल्म हासिल हुई है, जैसा कि हम लोगों को रिस्पांस मिला है, आई थिंक पिछले 10 सालों में किसी फिल्म को नहीं मिला है। तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर हफ्ते हर फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस करती है, लेकिन क्या उन फिल्मों को ऐसा रिस्पांस मिलता है? नहीं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, अवार्ड्स पे तो मुझे ऐसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि हमने जो फिल्म बनाई है वो हम लोगों ने जिस ईमानदारी से बनाई, जितने प्यार से बनाई है, दर्शकों को भी उतनी ही अच्छी लगी है। ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Well, I think I would say कि I am a self-made person. मैंने अपने करियर में जो भी आज हासिल किया है, I'd say कि मैंने उसके लिए काफ़ी संघर्ष किया है। लेकिन क्वीन ऑफ बॉलीवुड एक ऐसा टैग है जो एक बॉल की तरह ऐसे किसी पे भी फेंका जाता है हर महीने। तो मुझे ऐसा कोई टैग नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पिछले 8 साल से संघर्ष कर रही हूँ, और अभी मैं जहाँ पे हूँ, आई एम नॉट अ फ्लेवर ऑफ द सीज़न, और ना ही मेरी उस तरह की कोई आकांक्षा है कि मैं उस तरह का कोई शख्सियत बनूँ जो कि ऐसा फ्लेवर ऑफ द सीज़न बने। मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ, अलग तरह का काम करती हूँ और अपनी एक अलग जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरी चेष्टा यही रहेगी कि मैं अपना जो मेरा पर्सनल गोल है, फिर कुछ लोग मुझसे आगे हों या पीछे हों, वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा जो पर्सनल गोल है, मेरा हमेशा वही फोकस रहेगा। ये रानी अब रिवॉल्वर पकड़ने वाली है, तो वो रिवॉल्वर पकड़ने का रिवॉल्वर रानी इज़ अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फिल्म, और वो डार्क कॉमेडी है। उसका एक अलग मज़ा है, उसका एक अलग सुर है, और किरदार बिल्कुल क्वीन से बिल्कुल अलग है। तो आई थिंक वो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तभी तो 750 प्रिंट में हम लोगों ने 85 CR का बिजनेस किया है, क्योंकि लोग इस फिल्म को बार बार देख रहे हैं। जितने छोटे पैमाने पे ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, हम लोगों को शुरू में पता चला था कि 5 दिन तक टिकट्स नहीं हैं फिल्म के। तो आई थिंक ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी, मैं सुजय घोष की फिल्म कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बिल्कुल मना किया है कि ये थ्रिलर है, तो आप किसी से ये बात जो है वो ये किरदार के बारे में बात ना करें। ओके। हम लोग अगर कोई किरदार जब प्ले करते हैं, तो खासकर मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं उसमें पूरी तरह से ढल जाऊं और उसको जस्टिफाई करूं। फिर उसमें मेरा जो पर्सनल है, पर्सनल लाइक डिसलाइक कुछ नहीं रह जाता, फिर मैं एकदम किरदार हूँ। क्वीन तो फिर भी अच्छा, आप रिवॉल्वर रानी देखिए, आप डर जाएंगे। किस चीज़ से? मिर्ची अच्छी लगती है मुझे। यहाँ पे जो भी आया है वो खाना खा के गया है, तो आप भी 2 लाइनें सुना के जाए। हंगामा हो गया।